Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You're definitely watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और जितने भी लोग मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा ये इसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की खुशी की बात नहीं होगी, बट अनफॉर्चुनेटली शायद जो जितने भी लोग अब पूछते थे कि यार क्या पाकिस्तान अभी भी नॉकआउट स्टेज में पहुंच सकता है, तो पहुंच तो वो सकता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान ही होगा जहां पे उनको पहुंचना होगा। इसी के साथ मैं ज़रा रोहा नदीम को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रोहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी शहजाद, आई थिंक आपने बात बिल्कुल ठीक की। पाकिस्तान जो है उनको अब कोई मिरेकल ही चाहिए होगा परहैप्स, वो भी हम अभी बताते हैं सिनेरियो कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के मैच में किस मार्जिन से इंग्लैंड को हराना होगा। लेकिन न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका के मैच में जैसे न्यूजीलैंड ने आज खेला, ये वही पुरानी न्यूजीलैंड हमें नज़र आई एक बार फिर से। जिस तरह कि आपने कहा 2019 वर्ल्ड कप का रेफरेंस भी दिया और बैक टू बैक अब जितने भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स देख लें, न्यूजीलैंड हैव सक्सेसफुली मेड इट टू नॉकआउट राउंड्स, तो ये कोई नई बात नहीं है फॉर देम। ऑल्दो अभी क्वालिफिकेशन कंफर्म नहीं आई है, वी स्टिल आर येट टू सी दैट क्यू इन फ्रंट ऑफ द नेम on the points table, but all in all it's all but confirmed। और यहाँ पे credit to the way the bowlers bowled, उससे भी अभी हम बात करेंगे, and of course a bit disappointing for all the Pakistan fans। Exactly. Let's take a quick look at the match summary as well, as in what happened. So New Zealand won the toss today and they wanted to ball because of the overcast conditions and because of the predictions for the rain as well. And Sri Lanka batting first, but it looked like as if it was a domino effect. Kusal Perera today rising onto the occasion with 51 of 28 deliveries. And there was Theekshana at the bottom, or Dilshan Madhushanka resisting towards the New Zealand formidable bowling. On the contrary, it was New Zealand when they came onto the track. They knew that they really need to work on their net run rate. It was Devon Conway with 45 of 42, Rachin Ravindra with 42, and Daryl Mitchell with 43, making sure that they're going to get that success. But today, obviously, the name of the game happens to be Trent Boult, ladies and gentlemen. 3 wickets for 37 runs, 3 maidens in 10 overs, and 3.70 economy. New Zealand winning by 5 wickets. बिल्कुल, अब पॉइंट्स टेबल पे देखते हैं जी नज़र। यहाँ पे अब टीम्स के मैचेस जो हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड हैव प्लेड देयर लास्ट गेम टुडे ऑफ द ग्रुप स्टेज, और न्यूजीलैंड जो है वो इस वक्त नंबर 4 पे नज़र आ रही है। 10 पॉइंट्स के साथ उनका नेट रन रेट काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। नीचे उनके बिल्कुल पाकिस्तान, 6 पे साउथ अफ्रीका। तो इन दो टीम्स के पास एक एक मैच अभी और है, बट द सिनेरियोज लुक वेरी ब्लीक फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड ऑन द अदर हैंड आज उनको बहुत वो कहते हैं ना कि एक दे विल बी ब्रीदिंग अ साई ऑफ रिलीफ, नॉट जस्ट बिकॉज दे वन टुनाइट, बट जो शुरू के वो मैचेस अपने जीते थे जो बड़े मार्जिन से 9 विकेट से, फिर 100 रन से, फिर ऑलमोस्ट 200 रन्स, तो आज उनको उस जो जीत उनकी वो शुरू की थी उसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आ रहा है ऑन द पॉइंट्स टेबल। एंड फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वेल, नॉट सो मच। Exactly, which is why without any further ado, let's get our experts started speaking as well. So ladies and gentlemen, first up over here in the PTV Sports Studios, we're very lucky that we've been joined by a broadcaster, commentator and a former test cricketer himself, Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai, how are you? Walaikum salam, Allah ka shukr. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Sir, chota ya lamba? Chota. Ladies and gentlemen, the left arm quick everybody talks about. He is Mr. Wahab Riaz. Assalamu alaikum, Wahab bhai, how are you? Walaikum salam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Former skipper for Pakistan cricket team, ladies and gentlemen, Mr. Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum, Hafiz bhai, how are you? Walaikum salam. Thank you so much for joining us. And last but not the least, former skipper for Pakistan cricket team, wicketkeeper batter, Mr. Rashid Latif. Assalamu alaikum, Rashid bhai. वालेकुम सलाम शहजाद। राशिद भाई कैसे आप? ठीक है राशिद भाई, गेम की बात करें या पाकिस्तान अब आगे नहीं जा सकता वो बात करें? वो तो सबको पता चल ही गई है, चांद नजर नहीं आया। लेकिन दुख सर रहता ही है। दुख तो रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है हमें मैच की बात कर लेते हैं। जी, मैच की उसके बाद आधा घंटा है हमारे पास। ठीक है। न्यूजीलैंड डिजर्व करता था मेरे ख्याल से। मैचेस हारा ज़रूर, लेकिन उनकी टीम में अगर देखी जाए बैलेंस टीम है। स्पिन अटैक भी अच्छा है, पेसर्स भी अच्छे हैं, बैटिंग भी अच्छी, फील्डिंग भी, तो मेरे ख्याल से डिज़र्व करती थी वो सेमीफाइनल के लिए। और ऐसे ही लग रहा है कि अगर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसी टीम थी जो कि शायद आज का मैच थोड़ा सा डिले करते, लेट जीतते तो शायद चांसेस थे। लेकिन हमें अफसोस पाकिस्तान का नहीं है, हमें ख़राब खेलने का श्रीलंका का अफसोस ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि आज 171 पे या ऑल आउट हो जाए, टीम ऐसी नहीं थी। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है, चैम्पियंस ट्रॉफी का उनके पास प्रेशर था, और न्यूजीलैंड ने दिखाया कि भाई बिग ओकेजन पे लाइक सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मोस्ट टाइम शायद पहुंची होगी न्यूजीलैंड, और यही कह सकते हैं अभी कि डिज़र्व करती थी न्यूजीलैंड। और जिस तरह से पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट खेला, हारे भी है, लेकिन
चौथी टीम शायद वही डिजर्व करती है। बिल्कुल, अभी वही मैं बात की है कि अभी एक वो क्वालिफिकेशन वाला क्यों ही बस लगना रह गया है। वैसे तो जो सिनेरियोज हैं वहाँ वो तो उनके फेवर में ही हैं, बट a big comeback for them from the way that they bowled in their last game against Pakistan, you know, conceding a lot of runs. Of course, हमने फ़खर ज़मान की वो देखी, but यहाँ पे आज जिस तरह का comeback उनके bowlers ने किया, they were economical, they were taking wickets, they were attacking, they knew that this is their only chance left, and wonderfully bowled today. बिल्कुल, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द न्यूजीलैंड बॉलिंग। जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया, कुशाल परेरा उन्होंने आज बहुत अच्छा खेला, अटैक किया, काउंटर अटैक बहुत अच्छे किया, अपने शॉट्स खेले, लेकिन स्टिल ऐसे लगा कि एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल ऑफ न्यूजीलैंड। प्लस आज बोल्ड जो थे, ही वाज वेरी मच चार्ज्ड अप, और ये एक क्वालिटी होती है एक अच्छे बॉलर की कि जब पिछले मैच में उनको रन्स पड़े हो तो ही वांट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन इन द नेक्स्ट गेम, ताकि वो उसकी और उसकी टीम को फ़र्क पड़े, और वो आज हमें नज़र आया। इवन के ही बोल्ड 140 प्लस टुडे, विच वाज यूजुअली नॉट वी हैव सीन इन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और आके जोर लगा रहे थे वो, जगह पे गेंद हिट कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि फर्गसन का आ जाना और सैंडनर की आपस में जो पार्टनरशिप थी उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला न्यूजीलैंड को, और हमने देखा कि मिडिल पीरियड में केन विलियमसन की कप्तानी भी अच्छी थी कि ही मेड श्योर के सैंडनर और फर्गसन कंटिन्यू करते रहे, वो आखिर तक नहीं लेकर गया उनको। ऑब्वियसली एक आधी पार्टनरशिप लग गई थी विच वॉज अ बिट टू लॉन्ग, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी बात की थी कि न्यूजीलैंड अपना होमवर्क करके आएगी, और उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था। दे वर वेरी मच काम, कंपोज्ड, एंड दे नो कि उनको क्या करना है। वंस दे गॉट द ब्रेक्स ऑन द श्रीलंकन बैट्समैन, उन्होंने उनको उधर से निकलने नहीं दिया। प्लस जब बैटिंग भी आई है तो द वे बोथ द ओपनर स्टार्टेड दैट शोड के दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि उनको ये मैच जल्दी जीतना है। एक तो टारगेट भी छोटा था क्योंकि दे वांटेड के रन रेट इनका इतना अच्छा हो जाए कि पाकिस्तान जो उनके पास ना आ सके। एग्जैक्टली मैं इसी के साथ जरा हफीज़ भाई की जानिब बढ़ता हूँ। हफीज़ भाई, आज हमने इस सऊदी को मिस आउट करते हुए देखा, रादर ड्रॉप होते हुए देखा, नॉट जस्ट दैट, फिर केन विलियमसन को हमने इंजर होते हुए देखा, विल यंग को ड्रॉप होते हुए देखा। इट लुक्स लाइक एज इफ न्यूजीलैंड हैज फाउंड देयर मोजो नाउ। अब लगता है कि शायद यू नो दे रेडी फॉर इट, यू नो देयर टीम इज बैक, बैलेंस्ड कंपैरिजन भी करें किसी और टीम के साथ तो तगड़ा कंपटीशन देंगे अगले फेज में भी। देखिए, आज की विक्ट्री तो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में उन्होंने की। जो ज़्यादा जो टीमों के प्रोग्रेस करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं। एक टफ सिचुएशन जहाँ पे वो बाहर भी हो सकते थे, वहाँ पे उनका जो रिस्पांस है एज ए टीम, एज ए बॉलिंग यूनिट, एज ए फील्डिंग यूनिट, एज ए बैटिंग यूनिट, वो बहुत शानदार है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि जब उन्होंने 172 पे उनको 71 पे आउट किया तो जो इंटेंट था वो ये नहीं था कि हम 40 या 45th ओवर में मैच को लेके जाएं। They were even giving their wicket away for the right goal to achieve, and that was to qualify with the big margin, like to win this game with a big margin, ताकि बाकी दो टीमों को भी वो पुश बैक कर दें। exactly. तो मैं ये समझता हूँ कि आज की वो जो कैलकुलेशन, होमवर्क, टीम वर्क की बात करें तो न्यूजीलैंड ने आज के मैच को खेल के ये अपनी वो स्टैंप लगाई है अथॉरिटी कि हम ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं और हम ज़्यादा बेहतर सेल्फलेस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने कुछ हमें लग रहा था शायद कि यार ये जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, बट दे वर बेसिकली हिटिंग द राइट प्लान कि वो इस बड़े मार्जिन को अपने विक्ट्री में ले आएँ ताकि उनका जो नेट रन रेट है वो इतना आगे चला जाए कि पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात हों। लेकिन विद द सेम टाइम आई थिंक इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग मस्ट बी फॉर द श्रीलंकन फैंस, और हम खुद क्योंकि हमने उनका बड़ा शानदार टाइम देखा हुआ है तो हमारे लिए भी एक तकलीफ दे बात है एज ए फैन ऑफ क्रिकेट कि श्रीलंका की टीम की इतनी इस तरह की परफॉर्मेंसेस वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट दे मस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ राइट रीजंस के इसका मजा क्या है और उसके कैसे ये रिजॉल्व करके आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल, एंड यू नो दे आर नोन टू डू दैट। यू नो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में हिस्टोरिकली श्रीलंका ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वाइट बॉल में खास तौर पे, बट बी के आज एक और बैटिंग कोलैप्स, और ये हम बार बार बात कर चुके हैं श्रीलंका के साथ, जब ये कोलैप्सेस होते हैं तो फिर ये अनस्टॉपेबल डोमिनो इफेक्ट की तरह हमें नज़र आते हैं। कोई रिकवरी थोड़ी बहुत एंड में हुई फ्रॉम देयर, वही जो 9वें-10 पे नंबर के उनके बैटर्स थे, मधुशंका स्टक अराउंड ऑफ कोर्स, लेकिन व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दिस टू? क्योंकि मे बी इट वाज अ हाई प्रेशर मैच, मे बी दे वरंट जेल्ड टुगेदर जिस तरह यूजुअली श्रीलंका होती है इन बिग टूर्नामेंट्स। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड येट अनदर बैटिंग कोलैप्स? टूर्नामेंट नहीं, आज तो ऐसे पहले 10 ओवर तो आप देखें तो ऐसे अफरा तफरी मची हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैच हो किस तरह रहा है। वो आउट हो रहा है, कोई चौका मार रहा है, वो 28 बॉलों में 50 भी कर गया है और 5 आउट भी हो गए हैं। कोई सर पैर नहीं था मैच का, क्योंकि
जो बैटर आ रहा है, आप कुशाल परेरा की शॉट देख लें, जो बैटर आ रहा है वो शायद बाहर से ही, वो ड्रेसिंग रूम से ही काम नहीं आ रहा है या वहाँ से ही आ रहा है तो अंडर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि बैटिंग इस किस्म की हो रही थी। चले मान लिया जी कंडीशंस डिफिकल्ट थी, आप 30 पे 5 आउट हो जाओ, 25 पे 5 आउट, 75 पे 5 पहले पावर प्ले में, और उसमें अभी कैच भी छूटा है, परेरा का कैच भी छूटा है, परेरा कैच छूटा होता तो 6-7 आउट हो जाते। तो वो मतलब माइंडसेट कुछ समझ नहीं आया कि किस तरह हो रहा था स्विंग, मगर कोई इतना कोई लेविश स्विंग नहीं हो रहा था, इतना आउटस्टैंडिंग स्विंग नहीं हो रहा था, लग रहा था सामने बिल्कुल। लेकिन मैं मैच देखते हुए हैरानगी सी हो रही है कि हो क्या रहा है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी टॉस के वक्त मेंडिस ने ये बात जब उनसे पूछी गई कि लास्ट मैच में जो आपका वो टाइम आउट डिसमिसल हुआ था मैथ्यूज का, उसके बाद टीम कैसे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी काम है टीम, सो एवरीबॉडी इज वेरी काम, वेल इट वाज नॉट टू काम आउट ऑन द फील्ड। काम शायद हो, लेकिन वो उनकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पहले 10 ओवर में बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, एकदम ऐसे लगा कि बस यही है, इस 5-7 ओवर 8-10 ओवर में हमने मैच जीत जाना है, या इसके बाद जो है हमें ये खेलने नहीं देंगे। आखिरी आप पार्टनरशिप देखें तो वो 14 ओवर खेल गई, तो मतलब पिच इतना बुरा नहीं था जिस तरह उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया। और वहीं पे हफीज़ कहते हैं कि पहले 10 ओवर में आप मैच जीत नहीं सकते, हार सकते हैं, पहले 10 ओवर में 5 आउट भी हो गए, एक प्लेयर 50 भी कर गया। तो आप पिच को कैसे जज कर रहे हैं कि एक प्लेयर जो है उसने 28 बॉलों में 50 करके वो आउट भी हो गया और बाकी 4 की लाइन लगी हुई है। तो ये तो अब कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट, राशिद भाई टाइप एनालिस्ट बताएगा कि क्या हुआ है। सिर्फ मैं एक चीज़ बीके भाई ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो या मेरे जिन्होंने टॉस के बाद जो कप्तान है इनके मेंडिस, उनका आ सुना हो, तो दैट टेल्स यू द स्टोरी कि वो कितने ज़्यादा, उनकी जो आ थी वो कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ भरी हुई थी आफ्टर इवन लूजिंग द टॉस, एंड टॉस डजंट लाइक डिसाइड द गेम। वहाँ पे उनका वो जो एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज थी जिसकी वहाब ने बात की थी, दैट वाज बेसिकली कि वो टॉस भी हार गए थे। और वहाँ पे जो उनकी बैटिंग नज़र आई, वो जो बीके भाई बात कर रहे हैं कि वो जो 10 ओवर थे वो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या कोई आग लग गई है वहाँ पे, और वहाँ पे एक बंदा अगर 28 बॉल पे 50 कर सकता है उसी ट्रैक पे, तो जो बाकी 5 खेल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ट्रैक पे खेल रहे हैं, किसी और पिच पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक इनकी जो प्लानिंग या जो भी माइंडसेट था, जब इनको वो नहीं मिला टॉस जीतने का, तो उसके बाद बिल्कुल ही इनका जो माइंडसेट था वो आउट ऑफ द गेम हो गया। एग्जैक्टली। और सुबह में फिर बाजू भाई ने दुआ भी दी थी, वो मेरा ख्याल है वो भी लगी नहीं, शायद दुआ तो लग गई, श्रीलंका का काम शायद बन जाता। लेकिन आप जरा ट्रेंड बॉल की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ 30 पे 2, फिर 32 पे 3 और फिर 70 पे 4। सर मिडिल ऑर्डर को तो ट्रेंड बॉल ने बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया। पहले वहां भाई आपके पास आता हूँ, फिर उसके बाद राशिद भाई की जानिब बढ़ता हूँ। Trent Bolt being so impressive today, making sure that Sri Lanka is not going to stand a chance against him. Player of the match. शुरू में बताया था जब पिच रिपोर्ट हुई थी कि इस विकेट पे पेस अच्छी है, बॉल अच्छी है, एक पेस पे आता है। बट अगर आज आप देखें, he was having a different body language. He was very much aggressive and very much attacking. और उनके जो अटैक था वो विद इन द स्टंप्स था, और उन्होंने आज कोई भी बॉल ज़्यादा मुंह में नहीं किया। एक बॉल सिर्फ ऑफ स्टंप से बाहर किया, जिस पे 1-2 बॉल जिसके ऊपर कुशाल ने उनको मारा है, और वो भी स्विंग हो रहे थे। बट अदर देन दैट ही मेड श्योर कि यार मैं विकेटों को टारगेट करूंगा एंड आई कीप दैट लेंथ। तो बात यह कि जो एक इतना सीजन कंपेनर हो, जो इतना एक्सपीरियंस बॉलर हो, और जिस पे आपकी टीम डिपेंड करती हो, ठीक है 6-7 मैच जिनकी हम बात की है कि वो नए बॉल से उनकी फॉर्म नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच के बाद ही विल हैव मोर कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स, वेयर ही विल थिंक दैट नए बॉल पे ही हैज गॉट दोस विकेट्स एंड ही विल बी गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय दैट टाइम। तो कॉन्फिडेंस और बेहतर, तो उसका कॉन्फिडेंस और बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ गुड साइन फॉर न्यूजीलैंड टीम राइट नाउ, क्योंकि नए बॉल पे हेनरी आउट कर रहे थे, और हमने देखा पिछले मैच में इन्हें प्रॉब्लम हुई जब हेनरी नहीं थे, दैट वाज द ओनली मैच ही डिडंट प्ले। तो आज जो है वो ट्रेंट बोल्ट ने वो जिम्मेदारी ली है, ही हैज टेकन दैट रिस्पांसिबिलिटी, और उसमें कामयाब रहे हैं। और आने वाला जो मैच होगा सेमीफाइनल, आई थिंक उसमें ये चीज़ उनको बहुत। एक सवाल है जरा मासूमाना, जी आपसे सवाल ये कि कहते हैं कि बॉलर जब भागता है ना तो उसकी रिदम होनी चाहिए। बोल्ट आज तेज़ भाग रहा था, आपने नोट किया, आज तेज़ भाग रहा था। जब ब्रॉड भी जब तेज़ भागता है ना तो लगता है कि अब नहीं छोड़ेगा। तो वो रिदम क्या हासिल होती है, मतलब रिदम कब तेज़ भागने से रिदम ज़्यादा अच्छी आती है कि नॉर्मल? ये 2 बॉलर हैं, जब तेज़ भागते हैं तो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखिए बीके भाई, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट बॉलर्स के साथ। बेसिकली ही इज़ नॉट अ पेस बॉलर। ये वो बॉलर है जिसका क्रीज पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्मूथ है।
ट्रेंट बोल्ट को अगर आप देखते हैं या अगर आप क्रिस ब्रॉड को देखते हैं तो उनका जितना क्रीज पे उनका जितनी स्मूथ उनकी लैंडिंग होती है वो उतना अच्छा जो है वो करते हैं। वो मोस्टली आप देखेंगे कि वो ज़्यादा तेज़ नहीं भागते, वो नॉर्मल भागते हैं। अगर आपने एग्जांपल लिया, मैं हूँ, अगर मैं स्लो भागता हूँ तो इट इफेक्ट्स माय बॉलिंग, लेकिन अगर मैं तेज़ भागता हूँ क्योंकि मेरा एक्शन ऐसा है कि मुझे वो एक बाज चाहिए होती है पीछे, इफ आई गो नॉर्मल, इफ आई रन नॉर्मल, तो मेरी बॉलिंग में वो बाज नहीं आती। लेकिन अगर मैं तेज भाग के बॉलिंग करता हूँ तो आई ट्राई टू पुट मोर एफर्ट इनटू इट। तो दिस इज डिफरेंट विद डिफरेंट बॉलर्स। लेकिन आज जो वो तेज भाग रहा था या हमें लग रहा था वो ज़्यादा प्रोएक्टिव है, उसकी वजह यह है कि जो लास्ट मैच था उसकी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क एंड ही टुडे ही मेक श्योर कि मैं आऊँ और मैं आके थोड़ा सा जोर लगाऊं एंड टुडे हिज पेस वाज अप। मैंने जिस तरीके से कहा, यूजुअली इस पूरे टूर्नामेंट में ही हैजंट बोल्ड 140 प्लस रेगुलरली। एग्जैक्टली। और ये जो आपने भी बात की, इसमें एक और भी इस वर्ल्ड कप में मैं जिस बात पे राशिद भाई की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, ये हमने देखा कि बहुत ज़्यादा दफ़ा पिच रिपोर्ट्स के ऊपर लेंथ की बात हुई है कि जी 4 से लेके 6 तक या 5 से लेके 7.1 तक, फिर हम लेंथ की बात करते हैं, हम लाइन की बात करते हैं, हम ऑफ स्टंप की बात करते हैं। तो अगर हम पिच मैप देखें, आप राशिद भाई कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बोल्ट इतने इफेक्टिव है लेफ्ट हैंडर के लिए? देखें, एक पीछे बॉल की में 4 चौकर लगाए, लेकिन इनकी डॉट बॉल रेशियो देखें और उसके बाद ये सिंगल बने 2, 1 विकेट जो लिए यहाँ पे, ये राइट हैंड को 2 विकेट, एक हमने लेफ्ट हैंड पे दिखाई थी, यहाँ पे सदीरा को ये आउट किया, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे कुशाल मेंडिस आउट हुए हैं। जगह देखें जो वहाँ बात कर रहे हैं 6 to 8 मीटर, यानी कि 7 मीटर के अंदर बॉल की मैक्सिमम डॉट बॉल्स हैं। डॉट बॉल का मतलब ये है कि इन्होंने 45 डॉट बॉल किए 60 में से, जो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। मोस्टली ये बैकफुट पे खेले हैं, आगे नहीं गए खेलने के लिए, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल रहे। और इनकी बॉल को फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेला हुआ है। ये राइट हैंडर के लिए अगर देखेंगे बिहाइव देखते हैं तो एक रीजन में बॉल की है, एक जगह पे की है बॉल। लेफ्ट हैंड को देखेंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे एक ही जगह बॉल की है, यही इनकी सक्सेस रेट है। बाकी जो बात कर रहे थे, रिदम की बात कर रहे थे, इसमें 2 टाइप के बॉलर्स होते हैं वर्ल्ड में, देखे होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्रेंट बोल्ट है, इनको शायद बहुत तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है, ये नी डोमिनेंट बॉलर हैं, इनकी नी क्लब्स करेगी और ये शोल्डर से बॉल करेंगे। वसीम अकरम हो गए, इस टाइप के बॉलर हो गए। बाकी शोएब अख्तर, ब्रेट ली हो गए और हो गए, ये हो गए बैक डोमिनेंट बॉलर होते हैं। इनको ये वहाब भी, इसमें इनको तेज़ भागना ज़रूरी है। जहाँ पे ये स्लो भागेंगे तो शायद उनको वो रिदम नहीं मिलता, वो पेस नहीं मिलती, और इनके लिए सरफेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब भागते हैं, जैसे आज जो बात की है बादित ने, बेंगलोर की सरफेस बहुत अच्छी थी, जिसपे आप जब भागते हैं ना तो आपको मज़ा आता है भागने में। बाकी मैंने तो बोल दिया, बॉलर तो ये बताएंगे। मैंने एग्जैक्टली यही बात की है कि देखें, ट्रेंट बोल्ट हो गए, क्रिस ब्रॉड हो गए, हमारे स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, सॉरी। अगर आप हमारी टीम में किसी को, अगर आप ऐसे जो हमारे अभी पाकिस्तान टीम में हारिस शाहीन को तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। हारिस जो है, ही समबडी हु नीड्स टू बॉल, ही नीड्स टू हैव अ क्विक रन अप, ताकि वो उसमें वो जो आखिरी बाइट है जो एक वो मिलती है उसको, जो टेक ऑफ है उसका, वो अच्छा हो। वसीम जूनियर जो है, उनको भी तेज़ भागने की ज़रूरत है क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है कि वो बड़ा स्मूथ है सामने फ्रंट ऑन करके। तो ये जो चीज़ राशिद भाई ने बताई है, एग्जैक्टली शोएब अख्तर हो गए, मेरे जैसा बॉलर हो गया, विकी हो गया, या वकार भाई हो गया, अगर ये स्लो भागते थे तो इनसे बॉल, हमसे बॉल वहाँ पे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी कहते हैं कि यार आपके रनअप पे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना चाहिए, ये कितना नेसेसरी है? फिर अगर हम ये बात करें कि स्पीड की बात की कि 2 टाइप के बॉलर्स होंगे, नहीं, इसमें ये है कि रिदमिक बॉलर है, इनको रिदम चाहिए होता है, तेज़ भाग के चाहिए। सही है। इसमें कहने का मतलब जो बैक ज़्यादा ज़ोर से लगाते हैं, शोएब हो गए या ये और भी दुनिया के बॉलर हैं, उनको तेज़ भागना पड़ता है। वो स्लो भाग के, शायद शोएब का था कि वो कर लेते, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा थे, विकी का भी सेम था, और वसीम भाई का 2 कदम से भी नेट में बॉल करते थे, लेकिन उनकी बॉल आती थी। क्योंकि होता है कि जब नी क्लैप्स होती है तो आपका याला आर्म भी नीचे जल्दी आ जाता है। जब ये आर्म नीचे आ जाता है तो शोल्डर की स्पीड बढ़ जाती है, तो इसीलिए इनकी लेंथ का नहीं पता चलता कि कौन सी आगे जाएगी, कौन सी पीछे, कौन सा बाउंसर कितनी पेस में आएगा। मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ इसी बात में, मैं कोच नहीं हूँ लेकिन मेरी थोड़ी सी एक्सपीरियंस ये हुई है खेलने से। इवन एज ए स्पिनर जब आप बॉल करते हैं तो और एज ए फास्ट बॉलर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने आप को, जब आप मैच देखते थे पुराने या किसी बड़े टीम के, तो जो बॉलर 10 से 15 ओवर या 20 ओवर करता था तो उसके स्टेप्स आपको नज़र आते हैं, उसका जो 1 स्टेप 2 स्टेप वो जो भाग के आना होता था वो टक 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 वो निशान बन जाते हैं। इट टेल्स यू द रिदमिक मोमेंट्स ऑफ अ बॉलर कि जब तक वो सही रिदम में भाग रहा है, वो राइट मोमेंटम के साथ बॉल के ऊपर पहुंचता है, अपने स्ट्राइड के ऊपर, और फिर वो डिलीवर करता है। जिस प्लेयर का वो नहीं बनता, अगर वो आधा
फर्ज कर उसका जोर नहीं लग रहा और 2 ओवर के लिए लगा, 4 ओवर के लिए नहीं लगा, उसके कभी भी स्टेप्स नहीं बनेंगे। सो यू नीड दैट राइट रिदम, क्योंकि मैं एज ए स्पिनर मुझे पता है कि जब मेरा वो रिदमिक मोमेंट मेरी बॉल के अंदर नहीं आया, आई कुडंट डिलीवर द बेस्ट ऑफ द बॉलिंग, मेरा स्पेल अच्छा नहीं हुआ। 1-2 बॉल अच्छे हो गए, बट आई नीड दैट, वो जो मैं 7 कदम से मैं भागता था, तो जब तक वो 7 कदम मेरे सिंक नहीं हुए मेरी बॉलिंग के साथ, आई कुडंट परफॉर्म वेल एज ए बॉलर। आई एम श्योर कि ये वहाब बॉलर है, ये भी इसको शायद बता सके, मैं कोच नहीं हूँ, कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपका वो जो फॉलो थ्रू जहाँ से आपने भागना शुरू किया है, जब वो 1, 2, 3 वो जो स्टेप आपके अगर रेगुलरली वहीं पे पढ़ रहे हैं और अगर आपने 10 ओवर 15 ओवर किए हैं और वो उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, इट मींस यू हैव दैट एनर्जी एंड मोमेंटम इनटू द बॉल, और जब वो नहीं होगा you will never be consistent with the line and line. अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमें जो आज सैंटनर का स्पेल हुआ है, बिकॉज ही वाज नॉट ओनली इकोनॉमिकल टुडे बट ही वाज आल्सो दैट विकेट टेकिंग ऑप्शन फॉर देम। जो मिडिल ओवर्स में हम बात करते हैं स्पिनर्स के, इट्स आइदर यू टेक रिस्क्स अगेंस्ट देम और you know contain runs. He did both of those things today. तो अगर आप इसी स्ट्राइड में हमें हेल्प अस ब्रेक डाउन मिचेल सैंटनर। देखिए सैंटनर इज एब्सोल्युटली अ क्वालिटी बॉलर, क्योंकि उसका जो अगर आप इनकी बॉलिंग में अगर इन्होंने 10 ओवर कभी अगर किसी एक एंड से किए हैं तो आप देखिएगा इनकी वो स्टेप्स काउंट होंगे कि ये इस तरह चल रहे हैं और इनके वहाँ पे पाँव के जो निशान है वो आपको नज़र आएंगे। इसी तरह जो स्ट्राइड है जहाँ पे वो कर रहे हैं, जब आप ओवर स्ट्राइड हो जाते हैं तो आपकी लाइन और लेंथ बेहतर नहीं होती। जैसे बहुत से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जब वो बॉल करने के लिए लंबा स्ट्राइड लेके जाते हैं तो वो कंसिस्टेंट लाइन पे हिट नहीं करते। यू नीड दैट राइट बैलेंस इन योर बॉडी एज ए बॉलर, क्योंकि एज ए स्पिनर मुझे पता है जब मेरी लंबी स्ट्राइड होती है तो उसमें मेरी इनकंसिस्टेंट बॉलिंग होती है, लेकिन जब मेरा एक कंट्रोल स्ट्राइड आता है और उस स्ट्राइड के अंदर मेरा पाँव एक जगह पे पड़ रहा होता है, वहाँ पे फिर मेरी वो जो ग्रिप है, वो जो मोमेंटम है, वो जो सिंक होती है बॉडी, वो राइटली ऑपरेट करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी वहाब इज अ फास्ट बॉलर, ही कैन, देखिए कहते हैं कि अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ने चाहिए। आपने छोड़े ही नहीं। वो मैं इसलिए छोड़ता था। लेकिन ओवरऑल ये जो हफीज़ भाई ने बात की ना मोमेंटम की, बेसिकली जब वाकई बॉलर रिदम में होता है ना तो हर एक चीज़ की जो अलाइनमेंट होती है आपकी, इवन बॉडी की जो अलाइनमेंट होती है ना, वो बहुत एक स्ट्रेट लाइन में होती है। आपने अक्सर देखा होगा बॉलर्स को कि जिस तरीके से टिम साउदी की अगर आज के मैच में मिसाल ले लेते हैं, अगर आप उनको देखें तो ही इज़ अगेन समबडी जो बड़े रिदमिक तरीके से भागते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं भागते, लेकिन उनका जो लैंडिंग है या डिलीवरी स्ट्राइड है उनका, दैट इज़ इन सो मच कंट्रोल कि उनका जो एरिया हिट करने का वो है पिच मैप, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली टेस्ट मैचेस और उसमें उसकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। ये हफीज़ भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। फास्ट बॉलर्स शुएब भाई हो गए, आप ब्रेटली ले लें, आप और मोहम्मद शमी की बात, मोहम्मद शमी को ले लें आप, अगर जो क्विकेस्ट फास्ट बॉलर्स थे पाकिस्तान के। मैं भी अगर बॉलिंग करता था तो हमारा जो सबसे ज़्यादा मसला ये था ना कि हमारे जो स्ट्राइड्स थे ना वो एक जैसे नहीं थे, क्योंकि हम सबके जो एक्शंस है ना दे वर नॉट सिंपल एक्शन, मिक्स में थे हम लोग ज़्यादा मोस्टली। जो फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं वो ज़रा ज़्यादा इजी होता है उनके लिए, क्योंकि उनका बड़ा एक सिंपल होता है कि वो फ्रंट पे आते हैं तो सामने आराम से वो करते हैं। जो साइड ऑन बॉलर्स होते हैं जैसा वकार यूनुस थे, जी मैं बात ही करने लगा था कि वकार भाई को देखें When he used to run, वो पीछे उनका जो पूरा मार्क है वहां से जहां से उन्होंने भागना है, वो पूरे निशान आपको नजर आ रहे होते थे कि वो पाँव, दूसरा पाँव, तीसरा, चौथा वो नजर आ रहा था इस तरह। तो उनका साइड ऑन होता था तो उनको उसमें होता था। तो ये डिफरेंट बॉलर्स के लिए एक डिफरेंट टेक्निक है। लेकिन जो तेज भागने का आज का जो था जिस पे हम बात करें, जो बीके भाई ने पॉइंट उठाया, उसकी से वजह ये थी कि एट टाइम्स क्या होता है कि जब बॉलर इज अंडर प्रेशर या वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है या वो चाहता है कि यार मैं जाके अटैक करूं, देन उसकी वो बॉडी में जो है वो चीज़ आती है कि यार हाँ नाउ आई विल गो एंड आई विल बॉल डू समथिंग। और अगर वो चीज़ डिसएडवांटेज में चली जाती है, क्योंकि एट टाइम्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अ लिटिल बिट मोर हार्ड ऑन अ हार्ड वे, तो फिर ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है जब यू आर ट्राइंग टू मच तो वो आपके नेगेटिव में भी चला जाता है। लेकिन आज क्या था कि उसका जो स्टार्ट था, जो आज हमने पिच मैप देखा है, अगर आप सारे मैच के इसके पिच मैप निकाल लें इसके नए बॉल पे, तो यू विल फाइंड आउट कि आज ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव थी। बिल्कुल, आई थिंक वी विल ट्राई टू अरेंज दैट। जैसे अभी ने एक बहुत पते की बात बोली, हमेशा ही करते हैं, स्ट्राइड, लास्ट स्ट्राइड बहुत ही कैलकुलेटेड होनी चाहिए। जिसकी स्ट्राइड बड़ी होती है उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। सेंटनर की देखिएगा स्ट्राइड कितनी, वो जाके छोटी सी स्ट्राइड है तो एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा आती है। यही चीज़ फास्ट बॉलर की आ जाती है। इसमें बायोमैकेनिकली ये कहा जाता है कि 6 फीट अगर आपकी हाइट है और स्ट्राइड 75% ज़्यादा है उस आपकी हाइट से, तो आपको एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलेगी, आपकी लेंथ वेरी करती रहेगी हर ओवर में।
अगर हम देखते हैं मेल्कम ये आप मार्शल, देख सकते हैं सैंटनो का ये सैंटनर पूरे 8 मैचेस का है, ये इस मैच का नहीं, 8 मैचेस के सारी विकेट दी हुई है राइट हैंडर बैट्समैन के लिए। लेफ्ट हैंड में इन्होंने 1 विकेट ली है, राइट हैंड बैट्समैन ऊपर कॉलम में दिया हुआ है, उन्होंने ये विकेट ली हुई है। ये विकेट अब हम देखते हैं इनका 4 मीटर पे कौन सी बॉल की, 6 मीटर, ये 4 मीटर पे, बहुत 82% एंड 17% वहीं चले गए। अब 8 मीटर में आते हैं तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 47% यहाँ पे डॉट बॉल किए हैं इन्होंने इस एरिया में, मैक्सिमम बॉल जो किए हैं इन्होंने। और जो विकेट्स लिए हैं अच्छे प्लेयर्स को लिए हैं, लबशेन को उन्होंने आउट किया है यहाँ पे, और बैरिस्टो को आउट किया हुआ है। ये आउट वाले इनका रीजन आ गया यहाँ पे। क्या है इसमें पेस डिफरेंस होगी, आगे जो बॉल की है, आज जो बॉल की है इन्होंने, ये बैरिस्टो को आउट किया हुआ था, ये इन्होंने मार्नस को आउट किया हुआ है। तो इनकी पेस, कभी ये ड्रिफ्ट किए तो बॉल लेग स्टंप पे भी लेके गए हैं। तो डिफरेंट प्लेयर के लिए डिफरेंट पिचेस पे डिफरेंट लेंथ है इनकी, डिफरेंट लाइन है। तो यही क्वालिटी है। ये रेड में जो छक्के लगे हैं इनको और ब्लू में ये चौके लगे हुए हैं। और मेन इनका ये कि अपनी पेस को बहुत, पिच को देख के वेरी आज स्लो बॉल की उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्लो की, थोड़े बाहर। रात के मैच में बैटिंग इनकी बॉलिंग देखिएगा, थोड़ा सा आगे जोर से मारते थे हॉलैंड के, नेदरलैंड के खिलाफ, तो बीच में पड़ के लेग भी फोर ज़्यादा किए। तो ये पिच को रीड करते हैं, उसके मुताबिक ये बॉल करते हैं, इसलिए मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं। इसमें सबसे अच्छी जो बात है ना, वो सवाल छोटा, पूरा सेगमेंट निकल जाए। नहीं, ये भी आपने अच्छा किया, आखिर में अपना एंट्री पॉइंट भी दे दिया, मेरे ख्याल अच्छा किया। बादिश से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो देखें, ये तो छुपे रुस्तम है, इनको सब पता है, बताते नहीं हम लोगों को, हम भी सीख जाएं कुछ। जी बादिश। But thank you so much, Rashid sir, Hafiz, Wahab, BK, for explaining that, for breaking it down so simply for all of the viewers and for us even, because कभी-कभी मैच देखते हुए वो गहराइयों में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, because obviously आप लाइव उसमें देख रहे होते हो, but it's only after the game that you can really, and if you are lucky enough, you can sit across the panel like this and स्ट्राइड चेक करता हूं ना अपनी मेरी कर जाते। हाँ मनु सर स्लिप ना आप तो ब्रेक ले ले। चलो यहाँ पे जरा हम और थोड़ी बॉलिंग टिप्स ले रहे हैं और अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। When we come back, we will have a lot more of analysis for you on Game On, and don't go anywhere, we will be right back. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports। और जितने मेरे पाकिस्तानी बहन भाई देख रहे हैं वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अभी भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता होगा पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का। जी बिल्कुल निकलता है, अगर आप कहते हैं तो आपको बता देते हैं। ये है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी का फैसला करे, 500 रन बनाए और फिर उसके बाद 220 के ऊपर इंग्लैंड को आउट कर ले, तो भी हो सकता है कि हम आप पहुंच जाए सेमीफाइनल में। लेकिन क्या ये पाकिस्तान कर सकेगा, ये मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 11 तारीख को या 12 तारीख को इसका फैसला हम जरूर कर सकेंगे। लेकिन फिल वक्त मेरा ख्याल है वापस न्यूजीलैंड की जाने बढ़ते रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड की आज की इंटेंट के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए सर। उसमें सबसे पहले मेरा ख्याल है मैं डेविन कॉनवे का तस्करा करना चाहूँगा। 45 रन गालिबन उन्होंने बनाए, जिसमें से उन्होंने 9 चौके लगाए, तो जिसका मतलब हो गया कि समवट अराउंड 35-34 प्लस रन उन्होंने बनाए। अब यहाँ पे 36 यहाँ पे जी 6, इसीलिए मैंने आपके कहने से पहले जोड़ दिया। आई वाज कैलकुलेटिंग 9 into 4 36। जी तो अब मैं ये बात हो गई। नहीं, मैं अब सिर्फ आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड न्यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यार वी हैव टू कैटर इट, ताकि पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास चांस ही ना बचे। बिल्कुल, उन्होंने उनके लिए इजी टारगेट था। डिपेंड करता है कि उनकी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उन्होंने 171 तक महदूद रखा। बाकी श्रीलंकन का बड़ा क्रेडिट है कि वो भी इस तरह से खेले कि 75 रन 10 ओवर्स 5 आउट। आधी टीम तो आउट ही हो गई थी। ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे खेली थी 388 चेज करने जा रही थी, तो ये वाले जो टारगेट होते हैं ना इनके लिए, ये मामूली होते हैं इनके पास। इन्होंने विकेट थ्रो किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये जा रहे थे टारगेट कि जल्द से जल्द 25 ओवर 24 ओवर में हम कर लें, और उस टारगेट पे इन्होंने बनाया और उसको कंप्लीट किया। कॉनवे ने आज इतनी आसान पिच नहीं थी जिस तरह से दिखाया। एक चीज़ देखिएगा, उनके पास बॉल रुक के आ रही थी जिसके ऊपर वो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरू में ही रन का टारगेट ऐसा रख दिया कि आने वाले को आसानी हो।
शुरू में अगर आउट होते मे भी थोड़ा सा डिले हो जाता, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने, रविंद्रा ने और कॉनवे ने। फिर बाद में मिचेल ने भी उसको कंटिन्यू रखा। एग्जैक्टली मैं ज़रा इसी के साथ बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, जो राशिद भाई ने बात की है कि यार उन्होंने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हमने देखा कि पहली बॉलिंग के साथ उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रैक्ट किया, उसके बाद कॉनवे पे आपने भी सुबह में बोला था कि यार शायद पिछले कुछ गेम से अब कॉनवे के ऊपर भी ड्यू है। वाज इट द राइट इंटेंट दैट कॉनवे शोड? इंग्लैंड को उन्होंने हराया, फिर 3 ऐसे मैच जीते जो इनको जीतने चाहिए थे और वो जीते। फिर बीच में मैच हार गए, क्लोज मैच हारे, जैसे भी हारे, लेकिन वो कौन सी टीमों से हारे? बड़ी टीमों से। बाजिद भाई ये निगेट करता ना, सुबह जब हमने हेड टू हेड श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप का दिखाया था तो 11 मैचेस में से 6 बिल्कुल पुराना था, लेकिन जिस आइडियोलॉजी की आप बात करें वो शायद आज तो जरूर नजर आती है अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड आज बराबर हो गया उनका, श्रीलंका न्यूजीलैंड। वो तो पुराना, आप तो 2000 से पहले के इसमें ज्यादा विक्ट्रीज हैं। लेकिन इसलिए इनकी जो आप गेम प्लान की बात करते हैं या इनकी स्ट्रेटजी की बात की, तो स्ट्रेटजी बहुत पक्की होती है इनकी और उसको फॉलो करते हैं। आपने शायद आज सुबह ही कोई इंटरव्यू लगा हुआ था, तो वो मेरे ख्याल डैरेन मिचेल था, तो उसने कहा जी वी फॉलो द कीवी वे। कीवी वे क्या है कि अपने से पहले दूसरे को हेल्प करना है। तो जो कॉनवे ने बैटिंग की वो अपने से पहले बाकी आने वाले बैट्समैन को हेल्प किया कि सिचुएशन उनके लिए आसान हो जाए, तो जब मैं छोड़ के जाऊं या आउट होके जाऊं तो अगले के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो। बिल्कुल। चले यहाँ पे ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अबाउट हाउ वेल न्यूजीलैंड हैव बोल्ड, अभी हमने कॉनवे की भी बात की बैटिंग में, लेकिन अभी तक जो स्टार उनके लिए जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, दैट इज रचिन रविंद्रा, यू नो हाईएस्ट रन गेटर सो फार इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल। बट एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड उनका बन गया है कि मोस्ट रन्स फॉर अ बैटर इन अ डेब्यू वर्ल्ड कप। तो बैक टू बैक रिकॉर्ड्स, आई एम श्योर अभी जिस तरह और मैचेस वो खेलेंगे इस टूर्नामेंट में, जो रिमेनिंग उनके हैं 2-3 जितने भी हैं, उसमें भी वो पाइल अप करेंगे रन्स। बट ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, यू नो एट दिस एज, जस्ट स्टार्ट फॉर हिम। बहुत शानदार। और मैं समझता हूँ कि हमने पहले काफ़ी मरतबा बात की कि ये इस टूर्नामेंट के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, और मुझे लगता है कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के जोन में भी जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड की टीम फाइनल तक जाती है तो ही रियली शोन अ ग्रेट टैलेंट। और पाकिस्तान पूरे में अगर हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो लोग हमसे अक्सर जो है वो बात करते हैं, तो बहुत से फ़ैन के दिल जीते हैं इन्होंने। लाइक वो लोग न्यूजीलैंड, लाइक पाकिस्तान की प्लेयर के बारे में तो बात होती है, लेकिन वो दुनिया के प्लेयरों के जब बात करते हैं तो रचिन रविंद्रा उनमें शामिल हो गए हैं कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं, क्रिकेट फैंस, वो इनकी बैटिंग या इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस टूर्नामेंट के अंदर उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि पूरी दुनिया के फैंस जो हैं इनको पसंद कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि ये मैं फिर बात करूंगा कि राइट इन्वेस्टमेंट है, राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट है, और राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की गई। उनको तैयार करने के लिए 1 साल का प्रोसेस है, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया राइट वे में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की गई, और जिस तरह का उन्होंने पे बैक किया। और अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट है। और आज भी देखें, आज एक ऐसा मैच था, देखें लगता है बड़ा आसान है, लेकिन जस्ट टू इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे मस्ट बी हैंडलिंग बिफोर टू स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, कि हम हार भी सकते हैं, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वहाँ पे जिस कंट्रोल और जिस कामनेस के साथ इन्होंने अपने जो रन्स किए हैं, वो जो शॉर्ट रेंज थी इनकी, वो बहुत ही कैलकुलेटेड थी, कहीं पे भी स्लॉग नहीं था। जैसे कुसाल मेंडेस को आप देखें कि इज अ प्योर क्लासिकल बैट्समैन, लेकिन पिछली 2-3 इनिंग्सों के अंदर इन्होंने रॉन्ग शॉट्स खेले हैं। और आज चेस के अंदर भी एक प्रेशर आने वाले मैच में भी, जहाँ पे उन्होंने जल्दी चेस करने का भी एक इंटेंट उनके जहन में था, लेकिन जो शॉर्ट रेंज थी वो टेक्निकल बेस थी। वहाँ पे कोई भी दड़ेबाजी नहीं थी कि बस लग गया नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर दूंगा। ही वॉन्टेड टू स्कोर रन्स इन दिस गेम ऑल्सो। इट शोज द हंगर ऑफ समवन कि वो अपने हर अपॉर्चुनिटी को कैसे मैक्सिमाइज करने के लिए तमाम जो टेक्निक है, जो राइट प्लानिंग है, वो उसके अंदर डाल। बिल्कुल। और वही जो मॉडर्न डे बैटर्स की हम बात करते हैं कि टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आपको ज़रूरत है तो आप उस इंटेंट के साथ you can aim for a higher strike rate, but you can also pick and choose कि आपने कौन सी बाउंड्री सेट करनी है, रोटेट द स्ट्राइक। इस सेंस के अंदर भी थोड़े से ट्रेडिशनल भी हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खेलते हैं। बिल्कुल है, नज़र आ रहे हैं। बहुत लेट मूवमेंट है इनकी, जब रिलीज के बाद मूवमेंट है, पहले से अपनी बॉडी, अपर बॉडी को आगे नहीं लेके आ रहे। अगर ये खड़े हुए तो इनका रीजन फाइन लेग, थर्ड मैन से लेके पूरा मिड ऑफ तक, अगर कवर रीजन ऑफ साइड हम देखते हैं, हर जगह चौके मारे हैं। कल अगर मौका मिला या अगले मैच में तो इनका वैगन व्हील देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। स्पिनर्स पे एक जगह बस इनका प्रॉब्लम है, मिड विकेट से लेके फाइन लेग तक बीच में कोई बाउंड्री नहीं है इनकी।
यहाँ तो ऑफ स्पिनर के लिए बड़ा अच्छा है कि इनको यहाँ से कराया, लेकिन पूरे ग्राउंड में पेसर्स को जिस तरह से उन्होंने खेला है, बेली बटन हाइट के ऊपर जो इनको मिली है, या चेस्ट के नीचे इस दरमियान में जो रिब एरिया कहलाता है, वहाँ से इनकी पिक जो शॉट है वो नीचे स्क्वायर लेग पे नहीं है, वो मिड विकेट पे है। इट टेल्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ अ बैट्समैन कि उसकी जो शॉर्ट रेंज है वो बॉल को आगे से पकड़ते हैं और बॉल को मिड विकेट पे लेके जाते हैं और अपने आप को बॉल को एक साथ क्रैम्प नहीं होने देते, क्योंकि नॉर्मली जो बंदे नीचे खेलते हैं उनकी टाइमिंग या उनका जो कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं होता और बॉल आके बल्ले के ऊपर लगता है। तो इनका बैट का जो रिदमिक मोमेंट्स हैं वो बहुत शानदार और इनके पास पहले वर्ल्ड कप के अंदर इतनी क्वालिटी अटैक्स के अगेंस्ट देखो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बड़े-बड़े नाम हैं इसके अंदर। सचिन तेंदुलकर अंडर 25 उनके साथ अब ये खड़े हैं। आप सचिन तेंदुलकर का अगर आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके नहीं है, सिर्फ आई थिंक 3-4 रन का फर्क है, कुछ ही रन्स का डिफरेंस है, लेकिन अगर फर्ज करें वो तोड़ भी देते हैं तो ये उनके पास भी चले जाते हो तो आप सोचिए आप किसको बीट कर रहे हैं, बिल्कुल किसका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। तो एक स्पेशल प्लेयर है, मुझे लगता है पूरी दुनिया की जो इज्जत इनको मिली है इनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही डिजर्व दैट। रफली अराउंड 570 रन ऐसे 5 हां इनके आई थिंक 565 है, बट वही बात है कि 96 वर्ल्ड कप में आई थिंक सचिन वाज द हाईएस्ट रन गेटर, 99 वर्ल्ड कप में इट वाज राहुल द्रविड़ जिन्होंने बहुत स्कोर किए थे और आज बाबर ने भी किए हैं। इन दोनों के नाम के जो मिक्सचर है रचिन, ही इज नाउ सो फार। 2019 में बाबर ने भी एज ए डेब्यूटेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में, लेकिन ही प्लेड हमारी टीम में भी एक बड़ा अच्छा डेब्यूटेंट इस साल हमें नजर आया, अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में हमें सबको इम्प्रेस किया। अनफॉर्चुनेटली यू नो इट विल बी द एंड ऑफ द रोड फॉर पाकिस्तान, आई मीन इन ऑल लाइकलीनेस। बट जी वहाब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, हम न्यूजीलैंड की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं जी, थोड़े से ये स्टैट्स हैं वो बस शेयर करने थे कि 2015 के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड, 2019 के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड, 2015 के जो टॉप 4 में थे वो न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था और साउथ अफ्रीका था। 2019 में भी न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था और इंग्लैंड आया। और इस दफ़ा जो 4 हैं जो अभी बाजार नज़र आ रहे हैं उसमें साउथ अफ्रीका वापस आ जाते हैं, इंग्लैंड बाहर चले जाते हैं और साउथ अफ्रीका 15 में आए थे और उसके बाद अब वो 23 में आ गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूजीलैंड की जब भी हम बात करते हैं, जब भी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट शुरू होता है, वी नेवर रेट न्यूजीलैंड के यार दिस इज़ गोइंग टू बी अ टीम विच इज़ गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। और जिस तरीके से मुझे राशिद भाई की बात याद आती है, उन्होंने कहा कि केन विलियमसन चाहते हैं कि उनके होते हुए न्यूजीलैंड एक वर्ल्ड कप जीत जाए, जिसकी ये सारी तैयारी है और जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉबली इट कुड बी अ चांस कि ये टूर्नामेंट जो है, ये न्यूजीलैंड जो है ये फाइनल अपने नाम कर सकती है। ऑब्वियसली उनकी जो मैच है वो है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अगर कंपेयर करें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, इन तीनों टीमों में अगर हम निकालें तो न्यूजीलैंड ही, तो आई थिंक न्यूजीलैंड इज द ओनली टीम व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू बीट इंडिया। आपने जिस तरह ये स्टैट्स बताना तो शुरू मतलब किए ना, पाकिस्तान 287 रन से नहीं जीत रहा आपके। देखिए आपने कहा कि पाकिस्तान को 500 रन करने चाहिए ताकि 220 पे आउट करें, मैं कह रहा हूँ 550 कर ले ताकि 270 मैं वही कह रही हूँ, जिस तरह आपने ये स्टैट्स बताना शुरू किया मुझे लगा कोई और सितारा, कोई और कुदरत का निजाम कैलकुलेट हुआ है बुक के साथ ना, लिखा चौका सिफर चौका लिख चौका लिख छक्का लिख चौका लिख छक्का। अगर वो वाली गेम खेले तो शायद हो जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है 550 करना। 550 एग्जैक्टली खवातीनो साथ। इसके साथ हम भी एक ऐसी ब्रेक की जानी बढ़ना चाहते हैं जिस चीज़ के इस्तेमाल से आपका भी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। राइट आफ्टर शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक विल सी यू ऑन दिस साइड एट द पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज इस्लामाबाद। गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Alright, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you very much for staying tuned. फीस भाई गेम खेलते खेलते ज्यादा एक्साइट हो गए, मेरे ख्याल है कहते सही फीस भाई का वर्ड इस वक्त जब वो यूज करते हैं ना वो मेरे माइंड में आ रहा है। लेकिन क्योंकि आज हमारा मैच भी इसी तरह का था, थोड़ा सा अर्ली हम वापस समरी ग्रुप हुए हैं, बट वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, उनके रिकॉर्ड ब्रेक पे नहीं उठना है,
जी स्पीड ब्रेक पे नहीं उड़ना सर, जब हम कहें ना कि हम शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं तब शॉर्ट एंड स्पीड पे नहीं उड़ना। नहीं कोई मसला नहीं, थोड़ी दिन रह गए हम तो फिर कर लेंगे। लेकिन अब इसी के साथ जरा डैरिल मिचेल की जाने भी बढ़ना चाहते हैं, मैं जरा बाजी भाई की जाने बढ़ूंगा। छोटा सवाल करूंगा बाजी भाई, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डैरिल मिचेल टुडे वंस अगेन मेकिंग श्योर ही इज गोइंग टू राइज टू द ओकेजन। देखिए आया वो उसी मतलब वही जो इनका गेम प्लान था, उसी तरह पहले बॉल पे रिवर्स स्वीप मार के उसने चौका मारा, तो वो प्लान आपको नज़र आ गया था। पूरी 23-24 ओवर में आप देखें तो हर ओवर, हर दूसरे ओवर में एक बॉल बीट ज़रूर हो रहा है। एग्जैक्टली इसको यहाँ पे रैप अप करता हफीज़ भाई, हमने मैक्सवेल के हवाले से बात की, फ़खर जमान के हवाले से बात की। क्या आपको लगता है कि ऑन एनी गिवन डे मिचेल के पास भी ये टेंडेंसी और कैपेसिटी है कि ये कर सकते हैं? नहीं ज़रूर है, और आप देखें कि उनकी जो शॉट रेंज है इतनी क्लीन और इतनी कंट्रोल्ड है, और स्पेशली जो सामने इनकी रेंज है, मैंने शायद ही रिसेंट पास में किसी ऐसे प्लेयर को देखा हो। नॉर्मली लोगों की रेंज जो है वो मिड विकेट और स्क्वायर लेग और इन साइडों पे आती है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो वी के अंदर है। ये मिड ऑफ के ऊपर, मिड स्क्रीन की तरफ और मिड ऑन एरिया, ये जो एरिया इनका वो इतना कंट्रोल्ड है और इतनी उनकी जो शेप है इतनी शानदार रहती है कि वो ये शॉट खेलते हुए उनकी शेप टूटती नहीं है, और बैट का जो फेस है इट बेसिकली राइट वे में जो है उस बॉल की तरफ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी इनके अंदर बहुत है। और ये जो मैंने पहले भी बात की थी कि पूरी दुनिया के कुछ जिनको नंबर 5 के ऊपर जो 4 या 5 के ऊपर जो खेल रहे हैं उनमें एक बड़े नामों में एक बड़ा नाम ये डैरिल मिचेल साबित हो रहे हैं, क्लासन, हेनरिक क्लासन जो हैं वो साबित हो रहा है, मैक्सवेल वी ऑल नो कि ही कैन डू दैट, मैक्सवेल वी ऑल नो दैट ही कैन डू दैट एज वेल। इसी के साथ जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब जाना चाहते हैं, शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। खवातीनो ज़ात आप कहीं नहीं जाइएगा, आप जल्दी वापस आएंगे, कल के मैच के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और जे डॉट का आज जूले परफ्यूम कौन जीता है वो भी बताना अभी बाकी है। गेम ऑन। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही थी न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका की। अ कन्विंसिंग विन बाय न्यूजीलैंड, यू नो, विनिंग बाय 5 विकेट्स। हम लोगों ने पूरे मैच की एनालिसिस की, ऑफ कोर्स हाउ द मैच प्रोग्रेस्ड एंड द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट श्रीलंका गॉट। यू नो, अगर हम बात करें बैटिंग की हफीज़, इट लुक्ड लाइक मे बी दे वुड गो फॉर बिग रन्स, क्योंकि एक टाइम पे बिफोर द फॉल ऑफ विकेट्स हैपेंड, बिफोर जो एक कंटिन्यूस कोलैप्स था, एक जो लोन वॉरियर हमें नजर आए पेरेरा की शक्ल में, आज उन्होंने भी रन्स किए और आज उन्होंने ये दिखाया कि यू नो इफ ही कुड हैव, if only he could have gotten that support from the other end, maybe this could have been a different story. शायद वो दिखने को लग रहा हो, लेकिन जो पहले ओवर से डोमिनेंस थी, राइट एरिया में हिट किया न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने, स्पेशली मेंडिस, जिस तरह हमने बार बार उनके बारे में बात की है कि मे बी कैप्टनसी का प्रेशर है, मे बी इट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन मेंडिस के अलावा भी श्रीलंका ने लास्ट मैच में रन्स किए थे, उन्होंने भी आज वो सपोर्ट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस ऐड करते हैं बाकी प्लेयर्स, आज वो भी लैक करता हुआ नजर आया। इट वाज ओनली पेरेरा एज द लोन वॉरियर। ये गेम बड़ी टेक्निकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी है, और जब आप मेंटली वीक हो जाते हैं तो आप बेहतर फैसले नहीं ले पाते, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। ये चीज़ हमने अगर थोड़ा सा, अगर आप इंग्लैंड को देखें तो वहाँ पे बटलर में ये चीज़ नज़र आ रही है कि ही इज़ ग्रेट प्लेयर्स, वाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर के, वो या T20 में जब ओपन करते हैं तो आप बटलर को लेके जाते हैं कि यार अगर आपकी टीम में बटलर हो तो यू हैव अ चांस टू विन मोस्ट ऑफ द गेम एज अ बैटिंग यूनिट। लेकिन जब आप देखेंगे जब फेलियर आपके ऊपर गिरता है और वो मेंटली आपको वीक करता है, तो बटलर जैसा प्लेयर जो है उसने भी इस टूर्नामेंट के अंदर प्रेशर जो उनके ऊपर पड़ा कप्तानी का, जो उनके ऊपर पड़ा अपनी बुरी परफॉर्मेंस का, मीडिया का और एक्सपेक्टेशन का, वो उसको नहीं मीटअप कर सके तो वो भी नीचे गिर गए। तो श्रीलंका के प्लेयर, मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड कप उनके लिए बड़ा मुश्किल था, ये कैंपेन बहुत मुश्किल थी उनके लिए। एग्जैक्टली, वाज इट अ ग्रेट टूर्नामेंट फॉर श्रीलंका, बट टू रैप इट अप, यहाँ पे मैं जरा बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहूँगा। बाजी भाई ऑलरेडी क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली चैंपियंस ट्रॉफी की बर्थ भी वो अपने लिए नहीं रख सके। अब मूविंग फॉरवर्ड श्रीलंका किस तरह से रिविजिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दे हैव बीन अ चैंपियन वंस, यू नो 96 का हम 96 की बात करते हैं, अदरवाइज भी श्रीलंका की बात करते हैं, दे हैव बीन अ फिनोमिनल टीम।
Unfortunately, this is not what people might have expected, even Sri Lankans themselves. Also, Chris Silverwood का भी बताएं यहाँ पे कि उनका गोइंग फॉरवर्ड क्या रोल होगा एंड किस तरह से अब वो इस विजन को, अगर कोई विजन है, कैसे आगे लेके चलेंगे। देखिए वहाँ पे तो बोर्ड ही टूट गया है, वहाँ पे तो माहौल और किस्म का है। क्रिस सिल्वरवुड का अब क्या पता क्या रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन जो एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर है इनकी टीम में कि जो जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे ऑफ देयर करियर, मधुशंका का आप देख लें कि अभी शुरुआत है उसकी, निशांक का अभी मेच्योर हो रहा है, अभी उसने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, मेंडस भी वापस आए टीम में ज़्यादा बेहतर अब जाके खेलना शुरू हुए हैं। तो वो जो प्लेयर्स हैं, एजिंग टीम नहीं है, इंग्लैंड की जो टीम है वो एजिंग टीम है, तो उनमें से प्लेयर निकलेंगे। इसमें मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो अभी उनमें उनकी क्रिकेट काफ़ी बाकी है, तो शायद इन पे भी अभी कोर टीम रख के तो आगे ये टीम चला सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है वर्ल्ड कप ख़राब गुजर गया है, बट ये जो प्लेयर्स हैं इनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है और कई इन्होंने दिखाया भी है कि ये इस लेवल के प्लेयर्स हैं। बट अब वो मसला ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने यही बात की थी, पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी यही बात हो रही थी कि अब अगली दफ़ा अगले वर्ल्ड कप में ये टीम परफॉर्म करेगी, अब ये बिल्ड हो रही है, तो बिल्ड हो के दी नहीं अभी तक भी। अभी भी हम यही बात, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि शायद ये प्लेयर्स आगे जाके बिल्ड हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बिल्डिंग का क्या होगा वो पता नहीं है। अब तो बोर्ड भी टूट गया। इसमें आप यहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन की बात है उसमें वहाब भाई ने सुबह हमें मिकी आर्थर की मिसाल दी थी यहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली जो विश्का फर्नांडो और इन सब खिलाड़ियों की भी आपने बात की कि यार जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो अब खेलना भी नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि आप चले, चूंकि बोर्ड की भी डिसमेंटलेशन की हमने बात कर ली यहाँ पे, आपको लगता है कि आप वो कंसिडर करेंगे कि यार जिस प्रोसेस के थ्रू हम पहले चल रहे थे उसी प्रोसेस को फॉलो करें, या आपको लगता है कि सिल्वरवुड की आइडियोलॉजी विल वर्क फॉर देम लेटर ऑन? देखिए जो मिकी आर्थर की बात है वो तो तीर कमान से निकल चुका है, वो तो वापस नहीं आना, डैमेज हो गया, बट वो डैमेज एक क्रिएट हो चुका है। अब जो इनको इस वर्ल्ड कप से देखना चाहिए वो इन्हें ये देखना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में इनके पॉजिटिव्स क्या थे। असलंका, निशंका, कुशाल मेंडिस हिमसेल्फ, उसके बाद मधुशंका, तीक्षणा है अभी, उसके अलावा जो इनके मिडिल ऑर्डर में आया है क्या नाम है उसका, समारिक वर्मा, हाँ वो सदीरा। ये वो पॉजिटिव साइंस हैं जो कि इनके पास अब हैं, जिनके ऊपर ये डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ इन लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस दी हैं जी। और अब क्योंकि होता क्या है कि जब आप वर्ल्ड कप हारते हैं तो यू ट्राई टू डू दिस कि आप मोस्टली लड़कों पे वो निकाल देते हैं, और क्योंकि बोर्ड भी टूट गया है, सिल्वरवुड को भी अब पता नहीं कंटिन्यूएशन मिलती है या नहीं मिलती, जो भी है। लेकिन अब इनके पास ये टाइम है कि इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये लड़के जो हैं, ये लड़के क्या हमारा फ्यूचर हैं, और अगर ये लड़के उनका फ्यूचर हैं तो इन लड़कों के ऊपर अब इन लोगों को कम से कम आगे खिलाना चाहिए, कोई 4-5 साल 6 साल, अगर इनमें इतनी क्रिकेट की कैपेसिटी है। देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, अगर हम टीमें निकाल लें जिन पे हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जिस तरह अब इंडिया है, उनके 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने, और शामी, जिन्होंने बीच में आके चीज़ों को पकड़ा। वैसे राज एक नया आया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी बॉलिंग लाइन अपनी बदल दी। बैटिंग लाइनअप में उनके पास जो लड़के थे अभी तक वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन क्या है कि कोहली, शर्मा और KL राहुल के इर्द गिर्द खेल रही है सारी टीम, बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम न्यूजीलैंड की टीम देखते हैं तो वो केन विलियमसन के अगेंस्ट पीछे खेल रही है, और टॉम लैथम जो है उन्होंने इनको किया हुआ, और मिचेल एक उनमें से बीच में से आ गए। इसी तरीके से हर टीम में ये होता है। ऑस्ट्रेलिया में डेविड वार्नर, स्मिथ वगैरह हैं, लमुशन की बात हम लोगों ने की। तो अब ये जो इनके पास प्लेयर्स हैं जो ये आगे हैं, इनको इतना पता होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए कि यार ये लड़के आगे जाके दे कैन डू वंडर्स फॉर द टीम। और इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी थी, ठीक है ऑन एंड ऑफ थी, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि जो आगे जाके कंटिन्यूएशन में श्रीलंका को फायदा देगी। यू नीड टू मेक योर प्लेयर्स, ये नहीं कि कोई नया कोच आया और वो आके कहा यार अब इनकी ज़रूरत नहीं है, आप रिप्लेस करो, आप यंगस्टर लेकर आओ। लेकिन ऐसा कभी किसी टीम में नहीं हुआ कि आपने 10 निकाल के 10 नए यंगस्टर ले आए। यंगस्टर आप 1-2 लेकर आते हैं, मैक्सिमम 3 लेकर आते हैं, जिनको आप टीम के साथ रखते हैं, ऑन एंड ऑफ चांस देते हैं, उनको तैयार शैडो करवाते हैं। तो ये अब तौर तरीका होना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ से दोबारा बड़ी चेंजेस की तरफ श्रीलंका चला गया तो फिर जिधर आज खड़ा हम 2 साल बाद 4 साल बाद दोबारा वही बात कर रहे हो। एग्जैक्टली। राशिद भाई आप कैसे रैप अप करेंगे उनकी जो टूर्नामेंट रहा श्रीलंका का इस वर्ल्ड कप के ऑप्शन अंदर? बहुत ज़्यादा हो गए, आईसीसी ने कर दिए हैं। अभी ये यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।
वेस्ट इंडीज़ में जो हो रहा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर में लीग्स हैं, वहाँ पे प्लेयर्स आपके मैच्योर हो जाते हैं। तो T20 के लिहाज से टीम तो इनकी अच्छी बन जाएगी। वनडे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नज़र आ रहा है बॉलिंग का हसरंगा भी आ जाते हैं, तो क्या इनके पास पेस अटैक ऐसा है जो कि बाहर जाके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में जाके जीत सकें। इनके साथ यही है कि स्पिनर्स और अच्छे इनको लेने पड़ेंगे, जैसे अफगानिस्तान ने डोमिनेट स्पिनर से किया, और मुरली के ज़माने में भी ये लोग स्पिनर्स पे एक आध चमिंदावास होता था, लेकिन इनकी बैटिंग बहुत सपोर्ट करती थी। बैटिंग अभी भी अच्छी है, शायद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। चंडीमल की बात की, मैथ्यूज़ की बात की, अविष्का की बात की, ये ऐसे प्लेयर थे जो शायद शुरू से इस राजा पक्ष, तो ये ऐसे प्लेयर थे जो होने चाहिए थे, लेकिन टाइम ओवर हो गया इनका। अब नेक्स्ट उसमें देखना पड़ेगा, और लोकल कोचेस पे बिलीव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अभी आपने देख लिया कि बहुत ज़्यादा है। टॉस के ऊपर एक हंगामा हो गया वहाँ पे कि टॉस जीत के क्यों बैटिंग की या बैटिंग कराई, सेम चीज़ है जो हमारे यहाँ भी रिफ्लेक्ट करती है। एग्जैक्टली खवातीन और हज़रात, मेरा ख्याल है दिस सम्स अप श्रीलंका's जर्नी इन द ICC मेंस वर्ल्ड कप एज वेल 2023। इसी के साथ ज़रा अगली जानिब बढ़ते हैं कि किन किन की जर्नी जो है वो अभी तक चल रही है, अभी तक बाकी है, कौन सफ़र पर है और कौन उसका हम सफ़र है। मेरा ख्याल है ये देखने की बारी आ गई कि कल कौन सी दो टीम्स हैं जो आमने सामने होंगी। दे बोथ दीज टीम्स विल बी प्लेइंग देयर 9th गेम and which obviously happens to be the final game before the knockout stage. It's going to be South Africa versus Afghanistan, और अफगानिस्तान अगर सेमीफाइनल में अपनी बर्थ पक्की करना चाहता है तो 438 रनों से इनको साउथ अफ्रीका से जीतना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन। क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं, आई थिंक ये हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। रोहा, आपको क्या लगता है 438 रन से साउथ अफ्रीका को हराना नामुमकिन? आई थिंक नामुमकिन तो खैर इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हुए देखी जो मे बी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बहुत लाइकली होगा। बट जो हम देखेंगे फॉर श्योर वो ये है कि अफगानीज विल नॉट गिव अप विदाउट अ फाइट, दे विल गो टिल द लास्ट बॉल इन फैक्ट, और वो जिस तरह कहते हैं डाउन टू द वायर, दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बिकॉज साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो अंडर प्रेशर अगेंस्ट हमने वी सॉ अगेंस्ट नेदरलैंड्स एज वेल कि उन्होंने of course almost against Pakistan as they well. had a great tournament anyways, so yeah, I think so and they've already qualified, so maybe they will look to make a few changes if they want. Afghanistan can maybe capitalize on that, लेकिन they will not give up without a fight. कल का मैच होगा भी अहमदाबाद में, एक बड़ा आइकॉनिक ग्राउंड है, तो लेट्स सी कि कल का मैच कैसे होता है। बिफोर वी रैप अप आवर शो, ऑफ कोर्स हम अनाउंस करने वाले हैं जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर। हमें बहुत सारे आंसर्स मिले आज भी। आज का सवाल ये था कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा। थैंक यू शहजाद। और बहुत कैंडिडेट्स भी थे आज के लिए, हमने अपने तालियां बजाना चाहते हैं सबसे पहले, लेकिन बाजिद खान जो हमारे पैनल पे हैं उन्होंने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। सब बैटर्स की बात कर रहे थे, बाजिद भाई ने कहा कि यार इट विल बी बोल्ड। आप भी जी एक मिनट, हफीज भाई ने फर्गसन का नाम दिया, लेकिन नहीं ना, खेल नहीं दो स्टेप नहीं लेते गए यार। साडा केन विलियमसन भी आउट ना होता तो मैच जीत। वैसे हम सब ने अब दो नाम बताए थे। फर्गसन आपने भी बोला था, मैंने भी फर्गसन, और मैंने मधुशंका शायद और मैंने आप लोगों को कहा था मधुशंका के ऊपर जो प्रेशर होगा, मधुशंका आज हो सकता आउट। हमारे जोड़े हैं राशिद भाई ने कॉनवे और परेरा दोनों टॉप स्कोर अपनी टीम के लिए रहे ना। जी बिल्कुल रहे। और क्या चाहिए तुम्हें? आपको मैच नहीं उस तरह। चले आज जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम है तालियां बजा देते। नहीं आप समझ नहीं रहे, दोनों विकेट कीपर। जो जज्बा आपका दोपहर में होता है ना, बताते हुए वो जज्बा नहीं होता। सर वो बताते हुए इसलिए नहीं होता क्योंकि अब कल जो है ना, कल हम नहीं बताएंगे आप। नहीं अच्छा सर, मैं क्या बात है सर, क्या बात है। अब ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस टू शमशाद, इन्होंने आज सही जवाब दिया है। उनका ताल्लुक है शराकपुर से, इफ आई एम करेक्ट। यस, आपने बल्कि आज शहजाद कहा था कि हमें पिंडी से और इस्लामाबाद से जो है वो काफ़ी नाम आ रहे हैं, आज हमें शरकपुर से भी नाम आए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस शमशाद, और आप लोग इस तरह हमारे शो को जो है फॉलो करते रहें, इंगेज करते रहें, और हमारे शो के साथ कीप कॉलिंग, कीप tagging us, writing to us in comments, and we will surely be appreciating all of those love and feedback that we have been getting throughout this World Cup transmission. Gentlemen, thank you so much for joining us for yet another post-match analysis. कल का मैच अहमदाबाद में होगा. We will regroup in the morning. We will bring you all the pre-match analysis and of course the live action only on PTV Sports. अपना बहुत ख्याल रखिए. Game on है.